Good morning students. Now in today's lecture we will see new point, projection of satellite around the earth. Projection of satellite. Okay. Now what is satellite? Satellite का मीनिंग क्या होता है इनिशियली? देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है, a heavy body which revolves round the planet in a stable orbit is known as satellite. Satellite मतलब any heavy body that revolves around the satellite in stable orbit, this is known as satellite. Okay. जैसे देखिए अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? मून. मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट. मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, एक नेचुरल सैटेलाइट, सेकंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ठीक है, फर्स्ट टाइप नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जैसे नेचुरल सैटेलाइट मतलब क्या होगा कि नेचर मेड एनी हेवी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज नोन एज नेचुरल सैटेलाइट. जैसे मून. मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, बिकॉज मून इज नेचुरली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, हेवी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. सो मून इज natural satellite of earth. जैसे नेचुरल सैटेलाइट्स के और एग्जांपल कौन से होंगे? जैसे मार्स, द प्लैनेट मार्स हैज़ नेचुरल सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द मार्स. जुपिटर, सैटर्न हैव डिफरेंट नेचुरल सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड respective planets. Okay. जैसे all planets revolves around the sun, so we can say that all planets are natural satellites of the sun because they move around the sun. So all planets are also natural satellites because they revolves around sun. So all planet revolves around the sun, that means all planets are natural satellites of sun. जैसे moon revolves around the earth, तो moon is natural satellite of the earth. So this is known as natural satellite. Okay, जैसे moon revolves around the earth is a natural satellite. Moon is the natural satellite of earth. और moon को एक revolution complete करने के लिए around the earth कितना वक्त लगता है? That is 27.3 days. 27.3 days. Okay, जैसे अर्थ revolves around the sun in 365 days. So this is periodic time of these natural satellites. Okay, second type हमारे पास है, that is artificial satellite. अब artificial satellite मतलब man made satellite that revolves around the planet, that revolves around the earth are known as artificial satellite. तो there are many artificial satellites, है ना. artificial satellite का मीनिंग क्या होता है? man made satellite that revolves around earth is known as artificial satellite. There are many satellites. Nowadays there are more than 5,000 satellites are revolving around the earth in different orbits at different altitudes. So there are many artificial satellites around the earth. जैसे for example GSAT 1, GSAT 2, 3, 4 GSAT सीरीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं. ओके, जैसे और इनसैट, इनकी भी सीरीज़ है 1A, 2A, 3A, राइट. एप्पल, रोहिणी. These are some artificial satellite, okay, that are revolving now around the earth.
in different orbits at different altitude, at different heights from the Earth's surface. So these are some examples. Now in the world, which countries launched first artificial satellite in the world? And it is, yes, Sputnik. Sputnik, launched by USSR, that is United States of Soviet Russia. So Russia launched the first artificial satellite named Sputnik, okay, in 4th October 1957. This was the first artificial satellite launched by Russia in 1957. Did you know which was the first satellite launched by India? Yes, it is Aryabhat. It is Aryabhat. Okay, launched by India in 19th April 1975. So first satellite launched by Russia in the world, okay, October 1957, and first satellite launched by India in 1975, 57-75. इस तरह से इसको याद रखिए. ओके, तो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन द वर्ल्ड was Sputnik, country Russia. Okay, and first satellite launched by India was Aryabhat in 1975. So after that, many satellites launched in the space around the Earth. Okay, now for these satellites, okay, these satellites are launched for different purposes. अब ये सैटेलाइट लॉन्च क्यों करते हैं, प्रोजेक्ट क्यों करते हैं, एंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. तो देर आर मेनी पर्पजेस, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए, या फिर एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी, स्पेस स्टडी के लिए, ओके, या फिर मिलिट्री पर्पज़. तो देर आर डिफरेंट कम्युनिकेशंस पर्पजेस. सो देर आर डिफरेंट पर्पजेस ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स इन द स्पेस अराउंड द अर्थ. ओके, तो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट में हम यहाँ पर ये देखने वाले कि सैटेलाइट प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट कंडीशंस क्या है. ओके, सो देखिए यहाँ पर दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट इज मैन मेड सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस्ड. ओके, नाउ अगेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट में दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं. नंबर वन, equatorial satellites, and second, polar satellites. इक्वेटोरियल सैटेलाइट मतलब क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पर ये अर्थ है, तो ये इसका इक्वेटर हो जाता है, राइट. तो सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द इक्वेटर, ये इक्वेटोरियल प्लेन होते हैं. तो इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व होते हैं अबाउट द इक्वेटोरियल, नोन एज इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स. एंड पोलर सैटेलाइट मतलब क्या होता है, द सैटेलाइट्स विच आर मूविंग अराउंड द अर्थ अबाउट इट्स पोल्स. तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो अबाउट द नॉर्थ एंड साउथ पोल जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड द अर्थ आर नोन एज पोलर सैटेलाइट्स. अब पोलर सैटेलाइट की हाइट बहुत कम होती है स्टूडेंट. इट इज़ अबाउट 800 to 500 किलोमीटर, ये रेंज होती है. 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर तक पोलर सैटेलाइट की हाइट होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, और इनको एक रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ करने के लिए अबाउट 85 मिनट्स लगते हैं. 85 मिनट्स आर रिक्वायर्ड, ओके, for the polar satellite to revolve one revolution around the earth. Around the earth एक revolution complete करने के लिए polar satellite को just 84.6 या around of 85 minutes लगते हैं. मतलब during one day they can revolve about 16 times around the earth.
इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड स्पेशली इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसका एग्जांपल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसकी हाइट होती है अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। 36,000 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये हाइट होती है स्टूडेंट। एंड व्हाट इज पीरियोडिक टाइम ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट? इट इज़ इक्वल टू 1 डे, दैट इज़ 24 आवर्स। मतलब एक दिन में एक ही रिवॉल्यूशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ। मतलब कम से कम हाइट कितनी होती है? 500 किलोमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, मतलब 500 किलोमीटर टू 36,000 किलोमीटर, इस रेंज में बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। मतलब किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हाइट होगी 1000 किलोमीटर, 2000, 4000, 5000, 10,000 एट्सेट्रा। एंड सबसे दूर कौन सा सैटेलाइट होता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो रेंजिंग फ्रॉम 500 किलोमीटर टू 36,000 किलोमीटर। ओके, तो इन डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट अल्टीट्यूड पर नाउ अ डेज देर आर अबाउट 5,000 सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग इन द स्पेस अराउंड द अर्थ। तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, ओके, अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, तो ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखने वाले हैं स्टूडेंट कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का पर्पस क्या होता है। ओके, पोलर सैटेलाइट किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनकी हाइट्स क्या होंगी, पीरियोडिक टाइम क्या होता है, ओके, उनकी स्पीड क्या होती है, ताकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो जाते हैं अराउंड द अर्थ। तो ये आर्टिकल्स हम डिटेल में देखने वाले हैं। सैटेलाइट का मीनिंग क्या होता है? हेवी बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब मैन मेड सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जीसैट की सीरीज, इनसैट, एप्पल, रोहिणी। ओके, तो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन इंडिया, आर्यभट्ट। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय रशिया इन द वर्ल्ड, दैट इज स्पुतनिक। 2 तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, इक्वेटोरियल सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। तो राइट नाउ आपको ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इक्वेटोरियल सैटेलाइट मतलब ऐसे सैटेलाइट जिनकी अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होती है एंड दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, नाउ पोलर सैटेलाइट सेकंड, दैट द सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व्स अबाउट द पोलर एक्सिस, मतलब अराउंड नॉर्थ साउथ। तो इस तरह से ये सैटेलाइट्स अराउंड द पोल मूव होते हैं, सो दे आर नोन एज पोलर सैटेलाइट्स। एंड इक्वेटोरियल सैटेलाइट मूव्स अराउंड द इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, तो पोलर सैटेलाइट की हाइट बहुत कम होती है, 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर, और पीरियोडिक टाइम उनका होता है अबाउट 85 मिनट्स। लेकिन कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेशली जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है 36,000 किलोमीटर। ओके, देन पीरियोडिक टाइम इसका 24 आवर्स होता है। तो फ्रॉम 500 टू 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, इस डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट सैटेलाइट्स, डिफरेंट पर्पस के सैटेलाइट्स यहाँ पर रिवॉल्विंग है इन द स्पेस अराउंड द अर्थ। अब ये सैटेलाइट्स कैसे प्रोजेक्ट किए जाते हैं, यहाँ पर बेसिकली हमें देखना है। प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट projected up to certain height and then it revolves around the earth. So this whole process is known as projection of satellite. In projection of satellite, okay, तो satellite fix होता है at the tip of the rocket and that rocket carried the satellite up to certain height and then the satellite revolve around the earth in desired orbit. Okay, तो इसमें 2 स्टेज लॉन्चिंग सैटेलाइट होते हैं। मतलब 2 स्टेज मतलब कौन से? फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सैटेलाइट को डिज़ायर्ड हाइट तक पहुंचाया जाता है, एंड सेकंड स्टेज रॉकेट में क्या होता है कि दैट इट गिव्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू द सैटेलाइट सो दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो इस तरह से मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट यहाँ पर लॉन्चिंग सिस्टम होती है स्टूडेंट। देखिए 1 स्टेज एंड 2 स्टेज मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर लेट दिस इज़ अ रॉकेट एंड एक सैटेलाइट यहाँ पर इसके साथ फिक्स किया है। ओके, तो
सैटेलाइट और ये रॉकेट है। अगर हम एक ही रॉकेट यूज़ करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर दिस इज़ नोन एज वन स्टेज रॉकेट। तो रॉकेट के अंदर कैलकुलेशन करके उतना फ्यूल वहाँ पर फिलअप किया होता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर लॉन्चिंग पैड पर लाते हैं इसको, लॉन्चिंग पैड पता है ना आपको, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है इन द स्पेस। जैसे हमारे इंडिया में कौन सा है लॉन्चिंग पैड, श्रीहरिकोटा, यस, नियर चेन्नई। एंड उस सेंटर का नाम क्या है, यस, सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो वहाँ पर PSLV का मतलब क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, है ना। तो ये पता है ना आपको। तो वहाँ पर क्या होता है कि सपोज़ हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेज रॉकेट लॉन्चिंग क्या होता है देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेज रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है कि एक ही रॉकेट होगा, एक सैटेलाइट होगा, वहाँ पर फिक्स होगा ये दोनों एक साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर इग्निशन स्टार्ट होगा तो ये रॉकेट जो होगा, रॉकेट क्या होता है, मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। और कुछ डिज़ायर्ड हाइट तक आने के बाद वो रॉकेट क्या होता है, इससे ऐसा डिटैच हो जाता है। डिटैच हो जाना मतलब सेपरेट हो जाता है, ओके। एंड इट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, इट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस लाइक दैट। मतलब यहाँ पर रॉकेट जब प्रोजेक्ट ऑफ होता है तो सैटेलाइट उसके साथ मूविंग अपवर्ड होगा। कुछ डिज़ायर्ड हाइट पहुँचने के बाद सैटेलाइट इस रॉकेट से डिटैच हो जाता है। रॉकेट डिटैच होने के बाद ये नीचे ऐसा गिर जाता है ऑन द अर्थ सरफेस, ओके। बाय रिमोट कंट्रोल से इसको फिर से सही जगह पर लाया जाता है। नाउ अब सैटेलाइट यहाँ पर इस तरह से नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, तो सैटेलाइट भी रॉकेट के साथ नीचे आ जाएगा ना इस तरह से। तो सक्सेसफुली प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट हुआ है कि यहाँ पर नहीं, मतलब दिस इज नोन एज वन स्टेज रॉकेट सिस्टम। तो वन स्टेज लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम में क्या होता है कि रॉकेट का काम क्या होता है, टू डिजायर्ड हाइट तक इस सैटेलाइट को पहुंचाना, ओके। दिस इज नोन एज वन स्टेज रॉकेट सिस्टम। नाउ मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर प्रोजेक्शन। अब 2 स्टेज रॉकेट मतलब जिसमें मिनिमम 2 रॉकेट लगेंगे। जैसे यहाँ पर 2 रॉकेट आपको दिखाई दे रहे हैं और ये बीच में सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये लॉन्चिंग पैड पर लाया जाता है। पहले एक रॉकेट यहाँ पर इग्नाइट होगा, ओके। तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम क्या होता है, वर्टिकली अपवर्ड मूव हो जाता है टू सर्टन हाइट, यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सैटेलाइट डिटैच हो जाएगा इससे और वो गिर जाएगा नीचे, ओके। एंड बाय रिमोट कंट्रोल इसको सही जगह पर लाया जाता है। ये दूसरा रॉकेट यहाँ पर बचे। नाउ कुछ डिजायर्ड हाइट पहुँचने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर इस रॉकेट को बाय रिमोट कंट्रोल इसको 90 डिग्री से इस तरह से रोटेट किया जाता है, ओके। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। देन इसको यहाँ पर इग्नाइट किया जाता है। जैसे ये रॉकेट यहाँ पर इग्नाइट होगा तो इट प्रोवाइड्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू दिस सैटेलाइट। अब इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है स्टूडेंट, इस तरह से लाइक दिस, ओके। और बाद में फिर ये सैटेलाइट भी डिटैच होकर के ज़मीन पर आ जाता है। नाउ अब इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली है, ये समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए फर्स्ट सैटेलाइट यहाँ तक उसने लाया है। अब रिमोट कंट्रोल से क्या होता है कि सेकंड सैटेलाइट रोटेट किया जाता है थ्रू 90 डिग्री एंड इग्नाइट किया जाता है, ओके। तो इससे क्या होगा कि इस सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी। तो बाद में ये भी रॉकेट इस सैटेलाइट से डिटैच हो जाता है। नाउ तब तक इस सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई है। नाउ विद दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंटिन्यूस तो नहीं जाएगी, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये सैटेलाइट क्या होगा, फिर मूव्स होगा अराउंड द अर्थ continuously it moves around the earth, okay. Now horizontal velocity given by the rocket to this satellite, if it is equal to its critical velocity, then only the satellite revolves around the earth in circular path, okay. तो critical velocity मतलब क्या होती है, the velocity with which the satellite revolves around the earth in exactly circular path। तो उतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर इस सैटेलाइट को मिलनी चाहिए, ओके। तो इस तरह से 2 रॉकेट जरूरी है ना। सो दिस इज नोन एज 2 स्टेज रॉकेट सिस्टम, ओके। तो 2 स्टेज रॉकेट सिस्टम में क्या होता है कि फर्स्ट रॉकेट डिजायर्ड हाइट तक उस सैटेलाइट को पहुंचाता है, ओके। वो डिटैच होकर के नीचे गिर जाएगा। अब
बाय रिमोट सेंसिंग क्या होता है, सेकंड रॉकेट उसको 90 डिग्री से हम रोटेट करते हैं सैटेलाइट को और उस रॉकेट को। सेकंड रॉकेट जब इग्नाइट होगा दैट प्रोवाइड्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू द सैटेलाइट, और उस वेलोसिटी के साथ फिर ये सैटेलाइट रिवॉल्व हो जाता है अराउंड द अर्थ। And if the satellite revolves around the earth in exactly circular path, that velocity is known as critical velocity.